Commerce. How are you? Today we will be doing the next chapter of business studies, that is planning. But before starting your chapter, I would like to ask you that how many of you are dreamers? Everybody has dreams, right? But how many of you really turn your dreams into reality? Only those people can turn their dreams into reality who think that how can they do it. They think of some of the ways to achieve it. They think some of the strategies, some ways of doing it. Otherwise, you are dreamers only. Same in the business. If the business manager has some objective in their mind, but they are not doing anything to achieve it, it means that you have failed. This is very necessary to think about different ways as to how you can achieve your goal. As you can see on the board, this is your present position. It means you are dreamers. Where we are, you are here right now. But if you want to reach here, future position means you want to become achievers, or if you want to convert your dreams into reality, then you have to do planning. Okay? Planning means, in simple words, if I tell you what is planning, that you have to decide in advance. Okay? What you have to decide? You have to decide what to do, हमें क्या काम करना है, how to do, कैसे करना है, when to do, कब करना है, and who has to do, किसने करना है. If you have answers of all these 4 questions, it means clarity is there. It means you have done sound planning. Then you can reach to your goal. You know, some people think that we should not waste time in doing planning. Instead, they think, go with the action. But the truth is, the more you plan, the better is the outcome. So always do planning. Right now you're in +2. So maybe your aim in life is to become school topper or district topper, or you want to score 98% marks. Same wise, in the business also, some people have like to increase the sales by 20%, or they want to increase their market share. How can they do it? If right now, from today onwards, you plan something, you think of the various ways, you think of the various alternatives, then you can really achieve your goal. And those students who are not planning to score good marks, so obviously they will not be able to. But those students who are planning today in the best method at how they can study hard, they will really achieve their goal in their goals. So it's all up to you. Because failing to plan is planning to fail. अगर आपने कोई चीज़ प्लान नहीं करी है तो आप फेल होने के लिए रेडी हो जाओ. एक्चुअल में आप फेलियर की प्लानिंग कर रहे हो. एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू डोंट वांट टू गेट फेल. क्लियर? नाउ प्लानिंग is made up of some objectives. It means you have to set some objective, right? When the objective is set, then you have to make some plans. It means you have to find out the various ways, you have to find out the various courses of action, and then you have to work on it, and at the end you will achieve your goal. So sound planning is very, very important. Okay, so next topic is process of planning. But before starting the process, just go through this example. Now suppose you are working in an automobile company, and your aim is that you have to increase sales by 20%, okay, of small cars in the months of October, November and December. This is your aim, increase in 20%. Now when you have set your objective, after that you have to make some assumptions. Why? Planning is concerned with future. Planning future के लिए, but future is uncertain. हमें नहीं पता future में क्या होगा. So we have to make certain assumptions, and these certain assumptions will act as a base, and then we can plan the activities. क्योंकि planning के लिए हमें कुछ base चाहिए, और जो assumptions हैं वो base का काम करती हैं. So when you want to increase the sales by 20%, you have to make some assumptions. So जो manager था, he has made few assumptions. Like he said that because October, November, December, they are festival seasons, so maybe people will buy because they think that, people of India, they think that it is very auspicious to buy things in these months. So the sales can increase. This is one assumption. Second is the government is giving tax benefit on loans, and the bank, they have simplified the procedure of loans. So that means
that if the government is giving tax benefit and the banks have simplified the procedures, now it is easy for people to buy the products, either it's car or anything. So this was another assumption. Third is that after the implementation of 7th pay commission policy, the disposable income of the people have increased. It means कि disposable income means that after paying all your expenses, the leftover money. तो अगर आपकी वो बचा हुआ पैसा अगर आप बढ़ रहा है, it means now you have more money. It means there is a probability now that you can purchase my car. So I have made few assumptions. After making assumptions, now I have to, identify that what can be the alternatives to achieve my goal. For example, my first alternative can be that I can give free car accessories with every car. This is one way. Second way of increasing the sales is that I can give 10% discount on the price of the car. Third can be that I can go for 0% finance policy. It means that you do not have to make any down payment. Instead, you have to pay the price of the car in installments. No down payment. Fourth is that I can hire some celebrity or model to feature in the car advertisement so that he can influence my buyer. So there are 4 ways. I have thought it very clearly. Now, I cannot choose all the alternatives. Although I can choose combination, but I cannot choose all the alternatives. So what can I do? So after that, I will evaluate all the alternatives one by one. It means I will go through the pros and cons of every alternative. It should be very accurate analysis of all the 4 ways. After doing the evaluation, what I have to do, I have to select some way. Like I have decided that I will go for hiring some model or celebrity in my advertisement, like Amitabh Bachchan for the car, Salman Khan, anybody it can be, right? So for that, I have to implement also. How can I implement my alternative? I have to contact some advertisement agency. He will make the advertisement and I have to make sure that he makes the advertisement both in electronic media and print media. And I also have to assure that this advertisement should be displayed at the right place in the right time, so that it can create a right kind of impact on the consumer so that they can purchase my car. सारा कुछ हो गया. I have thought about the alternatives. सब कुछ मैंने decide कर लिया. Now what? At the end, I have to see whether, like at the end of December, after 3 months, I have to think that whether I have been able to achieve this goal, increase in 20%. If yes, then it means I was successful. It was sound planning. If not, it means then I have to take some corrective action. So now, ये पूरे example सुनने के बाद, you can easily understand the process. Okay, so now objective. The first process. Okay, first of all, there are 7 steps, and whenever in the exam process is asked, you have to answer in ascending order. In proper order, you have to write. So first is setting objective that I have told you. It means if there is one organization and it does not have any objective, organization objective नहीं, it means वो organization exist ही नहीं करती है. There should be some objective. It should be clear. It should be specific. क्योंकि जो भी हमने plans बनाने हैं, policies बनानी है या हमने methods बनाने हैं, anything that is to be based on objective only. अगर objective नहीं है तो हम planning किस चीज़ की कर रहे हैं, activities किस चीज़ के लिए plan कर रहे हैं. So first we have to set objective. Objective should be there. Okay. After setting the objectives, then we have to do developing premises. It is also known as planning premises. तो planning premises को अगर मैं simple words में बोलूँ, you can say that these are assumptions. I have told you that planning is concerned with future. Planning कभी past के लिए नहीं होती, future के लिए होती है. आप अपने +2 boards के लिए plan करोगे, आप अपने 10th boards के लिए करोगे. 10th boards आपका past है, +2 boards आपका future है. So when I'm doing the planning, I need some assumptions. क्योंकि assumptions मेरे लिए क्या काम करती हैं? Base का. Future is uncertain, पर मुझे assumptions बनानी है. Certain assumptions बनानी है जिसपे मेरा काम चल सके. So that is known as developing premises, or it is also known as planning premises, which is known as assumptions, and it is important from examination point of view, right? Then identifying courses of action. It means कि जितने भी alternatives हैं
ये जो प्लानिंग है ना, it is done by intellectuals. You have to use your brain. There should be sound planning. आपका guess work यहाँ पे नहीं चलेगा. तो जितने भी alternatives हैं, 4 हैं, 5 हैं, 2 हैं, whatever, you have to carefully decide कि कौन कौन से options हो सकते हैं. One way की हो सकता है जो आपकी रूटीन में हमेशा से जो वेज आ रहे हैं, कोर्सेज ऑफ एक्शंस चल रहे हैं, वो भी ले सकते हो. एंड एट द सेकंड प्लेस, एम्प्लॉय सजेशन कैन ऑल्सो कम इन हैंड, बिकॉज as we have done in chapter 2 that we should encourage the employees so that they can come up with the suggestions. Same wise, when I'm having a meeting and my employees can tell me some better idea, I can take those alternatives also, right? So I have identified different courses of action which will help me to achieve my goal. Clear? After identifying, I have to evaluate. Evaluate means I have to do accurate analysis. It means that I have to go through the pros and cons of every method. Deep analysis should be there. That is known as evaluation. Deep checking should be there. Then after that, you have to select one alternative. You can choose combination also, otherwise you have to choose one alternative. Sometimes for few things there is only one alternative, so that does not leave any choice. You have to go with that particular choice only. It arises when there are 2 options, 3, 4 or many. Right? So when you have to select an alternative, you have to do proper decision making. Decision making is very very important. Decision लेना कोई आपका गैस वर्क नहीं है कि मुझे लग रहा है कि मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे लगता है ये सही. लगने पे कुछ नहीं होने वाला. आपको लग रहा है, आपकी विश है कि ऐसा हो जाए. नो, यू हैव टू यूज लॉजिक्स. यू शुड बी रैशनल, इंटेलेक्चुअल होने चाहिए हो आप. आपको पता होना चाहिए कि मीन्स योर डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स. इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन गैस वर्क. Okay, so after selecting, I have to implement the plan. It means I have to put the plan into action. Whatever method I have chosen, अब मुझे उसका क्या करना है, उसको एक्शन में लेके आना. Means I have to actually उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना है जो भी मैंने अपना ऑल्टरनेटिव चूज किया. Clear? Then last is follow up. Follow up means I have to check कि जो मैंने डिसाइड किया था whether I have been able to achieve it or not. क्योंकि like for example जो मेरा ये एग्जाम्पल था, इसमें हमारे 3 months थे, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. Now 3 months प्लान था. At the end of that period, I have to check that whether I have been able to achieve my objective or not. If not, then I have to take some corrective action कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई, ताकि मैं उसको नेक्स्ट टाइम जो भी डेविएशंस आई आई कैन करेक्ट इट. अगर नहीं, इट मीन्स आई वॉज सक्सेसफुल एंड आई वॉज विद द हेल्प ऑफ साउंड प्लानिंग आई हैव बीन एबल टू अचीव माई गोल. सो दिस इज 7 steps planning process which is very important. Okay, if you have any problem you can ask me personally. Okay, so now next topic is features of planning. Features I have told you, it can be called as a nature also and it can also be called as characteristics. So confuse नहीं होना exam में. So the first feature here is planning focuses on achieving objectives. अगर आपकी लाइफ में कोई एम नहीं है तो क्या आप प्लानिंग करोगे? नो, नीड ही नहीं है. आपको तो वैसे ही समझ आएगा कि करना क्या है. तो प्लानिंग इज अ वेरी पर्पसफुल एक्टिविटी. मतलब आपको कोई पर्पस होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो हम इतनी एक्टिविटीज किस चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं. तो सबसे पहले जो फीचर है प्लानिंग का कि वो किस पे फोकस करता है, टू अचीव गोल. जो मैंने लास्ट एग्जांपल लिया दैट यू वर्किंग इन ऑटोमोबाइल कंपनी, तो उस पर आपका एम क्या था, 20% इंक्रीज इन सेल्स. मतलब आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपने प्लानिंग करी, जो भी आपने एक्टिविटीज सोची कि किसने करनी है, कैसे करनी है, जो भी अपने कोर्सेज ऑफ एक्शंस लिए, वो सारे किससे रिलेटेड थे, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. तो अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो प्लानिंग नहीं है. इट मीन्स नो गोल कैन बी अचीव. लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव है तो उस पर प्लानिंग को फोकस करना पड़ेगा, उस पर सोचना पड़ेगा कि कैसे हमने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. क्लियर? नेक्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन. व्हेन वी हैव डन चैप्टर नंबर 1, तो जो मैनेजमेंट का मेन है उसमें क्या आता है, दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. अब ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस में आपको पता है कि देयर आर 5 फंक्शंस. ठीक है, कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. अब
प्लानिंग एक बेस है, अगर मैं प्लानिंग नहीं मैंने किसी चीज की करी तो ये वाला पार्ट पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू अरेंज अ स्टाफ मीटिंग, ठीक है, तो उसके लिए कुछ नेसेसरी अरेंजमेंट्स करने, किस रूम में होना है, कितनी चेयर्स रखनी है, ऑल दैट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपको स्टाफ मीटिंग का डे ही नहीं पता तो क्या आप बाकी नेसेसरी अरेंजमेंट्स कर सकते हो? नहीं। इट मीन्स प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। स्टाफिंग है, अगर मुझे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं पता, मतलब मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो मीन्स कोई प्लानिंग नहीं है, तो क्या मैं स्टाफिंग कर सकती हूँ? मतलब कैन आई अपॉइंट द नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि मुझे पता नहीं जब काम क्या है, कितनी रिक्वायरमेंट है, मुझे पता ही नहीं है, तो स्टाफिंग तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि प्लानिंग नहीं हुई। तो जो प्लानिंग है वो कौन सा फंक्शन है? प्राइमरी। पहले प्राइमरी प्लानिंग होगी तो जाके ऑर्गेनाइजिंग होगा, फिर स्टाफिंग होगा, फिर डायरेक्टिंग होगा एंड देन कंट्रोलिंग होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज परवेसिव। आई नो दैट यू नो द मीनिंग दैट एट ऑल लेवल्स, right, at all places, large organization, small organization, clear? So either, now there are three types of level: top, middle and operational. जो प्लानिंग है वो हर लेवल पे है। टॉप लेवल इज द लेवल जो सबसे ज्यादा प्लानिंग करता है, एंड वट एवर प्लान्स आर मेड बाय टॉप लेवल that has to be implemented by middle level. मिडिल लेवल पे क्या होता है? मिडिल लेवल पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, तो उनके कुछ डिपार्टमेंटल प्लान्स होते हैं, तो दे हैव टू वर्क ऑन दैट। देन वी हैव ऑपरेशनल लेवल, तो ऑपरेशनल लेवल पे भी प्लानिंग होती है जिसके हिसाब से वर्कर्स को काम करना पड़ता है। प्लानिंग इज एवरीवेयर, स्कूल, हॉस्पिटल्स, कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज है, प्लानिंग इज एवरीवेयर। प्लानिंग नहीं है तो आप गोल अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ सपोज जो आपकी फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द स्कूल मैनेजमेंट, दे हैव टू प्लान द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ स्कूल, ठीक है, कि कैसे एग्जाम्स होंगे, उन्होंने प्लानिंग कर दी। अब जो आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, उसको भी प्लानिंग करनी है। क्या प्लानिंग करनी है? डेट शीट बनानी है, उनको इन्विजिलेशन ड्यूटी चार्ट बनाना है, उनको सिटिंग प्लान बनाना है, तो उनका प्लानिंग वर्क ये है। इफ आई टॉक अबाउट टीचर्स, तो उनको अपने जो भी उनका वर्क है, दे हैव टू प्लान द वर्क इन सच अ वे कि जो भी पेपर में आना है वो पहले करवा सके। वो कैसे होगा? इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू प्लानिंग। सो प्लानिंग इज परवेसिव। क्लियर? सो वी हैव डन थ्री फीचर्स। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव नहीं है तो प्लानिंग नहीं है। देन प्राइमरी फंक्शन, देयर आर 5 फंक्शन। सबसे पहला बेस क्या है? प्लानिंग का है, प्लानिंग होगा तभी हम बाकी फंक्शंस कर सकते हैं। देन परवेसिव, एट ऑल लेवल्स, दैट planning is to be done at all levels, either top, middle or operational, and it is applicable everywhere, large organizations also, small organizations also. Now next is continuous. Continuous का मतलब क्या है? Continuous का मतलब ये है कि प्लानिंग कभी खत्म नहीं होती। अगर प्लानिंग खत्म मतलब ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। प्लानिंग कैन बी फॉर लाइक 1 month, it can be for 1 year, it can be for quarter, ठीक है। तो जैसे ही आपका प्लानिंग पीरियड खत्म, उसके बाद दोबारा से आपकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो मैंने एग्जांपल लिया था ऑटोमोबाइल कंपनी वाला, उसमें 3 मंथ्स के लिए हमने प्लानिंग करी थी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जैसे ही खत्म होगा नेक्स्ट मंथ से हमारा दोबारा से प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि प्लानिंग साइकिल कभी खत्म नहीं होता है। सेकेंड थिंग इसमें ये है कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव डन चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड यू नो दैट देयर आर सो मेनी चेंजेस अकरिंग इन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड वी हैव टू एडजस्ट टू दैट चेंजेस। तो अब अगर मैंने कोई प्लानिंग करी है, ठीक है, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ गया, बिकॉज आई हैव टू अपडेट माई सेल्फ, तो मुझे शायद अपनी प्लानिंग में उसी के हिसाब से चेंजेस करने पड़ेंगे। नहीं करूंगी तो आई विल नॉट बी एबल टू अचीव माई गोल, आई कैन नॉट बी एबल टू सर्वाइव, सो आई नीड टू एडजस्ट टू द चेंजेस। सो इसलिए कहा जाता है कि जो प्लानिंग है वो कंटिन्यूअस है। फॉर एग्जाम्पल जो मेरी प्लानिंग थी वो मैंने बूम पीरियड के लिए करी थी, ठीक है, लेकिन अचानक से, क्योंकि बिजनेस भी अनप्रेडिक्टेबल होता है, हमें नहीं पता कि क्या होना है, तो डिप्रेशन पीरियड आ गया, तो नाउ आई हैव टू चेंज माई प्लान्स। तो प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, ये कभी खत्म नहीं होता है। अगर एक प्लान खत्म हो गया तो सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड खत्म हो गया तो थर्ड स्टार्ट होगा, प्लानिंग चलती ही रहेगी, प्लानिंग हर जगह होती है। क्लियर? ओके, सो सपोज आपने
आपका जो प्लान बनाया था, प्लान ए, वो फेल हो गया, अब क्या करोगे? फेल तो तभी तो चलेगा ना जब पहले किया होगा फेल हो गया। सपोज करो आपने टर्म 1 के लिए प्लानिंग करी थी, आपने कुछ प्लान्स बनाए, लेकिन आपका वो रिजल्ट नहीं आया जो आप चाहते थे, इट मीन्स वो फेल हो गया। अगेन आप प्लान बी बनाओगे, इट मीन्स दोबारा से प्लान एक्शन में आ गया। इस करके हम ये कहते हैं कि प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, प्लानिंग नेवर एंड्स। क्लियर? नेक्स्ट इज फ्यूचरिस्टिक, मतलब कि जो प्लानिंग है वो फ्यूचर से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया क्योंकि प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर, कभी हम पास्ट के लिए प्लानिंग नहीं करते। नो डाउट कि पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं उसको हम जरूर कंसिडर कर लेते हैं अपनी प्लानिंग एक्टिविटीज में, लेकिन जो हमारी मेन प्लानिंग होती है इट इज ऑलवेज फॉर द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल मैं सेल्स फोरकास्टिंग करती हूँ, मैं सेल को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती हूँ, क्यों? ताकि मैं जो नेक्स्ट हमारा सेल्स प्लान है वो बना सकूँ। अगर मैं सेल्स की प्रिडिक्शन नहीं करूंगी तो मैं कैसे एस्टिमेट लगा सकती हूँ कि हाँ फ्यूचर में इतनी सेल्स हो सकती है। सो वी हैव टू फोरकास्ट, हमें प्रिडिक्शंस करनी पड़ेंगी जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, ताकि हम अप टू डेट रहे। हम नाउ सी, जो ये फ्यूचर है वो अनसर्टन है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम उस रिस्क एलिमेंट को हम खत्म नहीं कर सकते 100%, वी कैन नॉट एलिमिनेट दैट रिस्क फुली, लेकिन हम उसको बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, जैसे आपको पता है बैड डेट्स होते हैं बिजनेस में, कभी भी बैड डेट्स हो सकते हैं, तो पहले हम क्या बना लेते हैं? उसका प्रोविजन। सो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट्स होते हैं हम उसको कवर अप करने के बारे में प्लान्स बना के रखते हैं। सो प्लानिंग इज ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग हमेशा किसके लिए होती है? फ्यूचर के लिए होती है। तो अगर हम प्लानिंग फ्यूचर के लिए करेंगे तो ही हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। आपको अगर प्लानिंग प्रोसेस याद है तो अब डिसीजन लेना कोई सिंपल काम नहीं है। जो डिसीजन मेकर होता है ही शुड बी वेरी साउंड, ही शुड बी वेरी लॉजिकल, उसको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा, अपनी ही शुड हैव इंटेलिजेंट इमेजिनेशन। गैस वर्क मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि नहीं चलेगा। इफ़ आई हैव सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स इन फ्रंट ऑफ मी, सबसे पहले मैं सारे मेथड्स के लिए नहीं जा सकती, सिर्फ वो मेथड जो मुझे पता है कि पॉसिबल है। नाउ सपोज देयर आर 4 मेथड्स, ठीक है, तो जब मैं उसकी इवैल्यूएशन कर रही हूँ आई हैव टू सी कि जो मेथड सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, द मेथड विच इज कॉस्ट इफेक्टिव, द मेथड विच विल हैव लीस्ट पॉसिबल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, वो मैं चूज करूँगी। लेकिन वो मैं ऐसे नहीं कर सकती, मुझे उसके लिए एनालिसिस करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। तो द डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन रैशनल थिंकिंग। आप रैशनल होने चाहिए और इंटेलिजेंट होने चाहिए। योर डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, इट शुड नॉट बी विशफुल थिंकिंग, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन गेस वर्क। क्लियर? एंड द लास्ट इज मेंटल थिंकिंग। इट मीन्स कि जो प्लानिंग है वो एक मेंटल एक्सरसाइज की तरह है। मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि जो प्लानिंग करी जाती है, सपोज एक मैनेजर है एंड ही हैज़ टू प्लान, एक मूवी रिलीज होने वाली है, तो उसके रिलीज होने के लिए उसको कुछ प्लान करना पड़ेगा कि ऐसे मूवी रिलीज करी जाए, ठीक है, प्रमोशन करनी है उसको मूवी की। तो हो सकता है कि वो अब ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स कि एक ग्रुप डिस्कशन चलेगा जहाँ पे बहुत सारे आइडियाज एक्सचेंज होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए या न्यू आइडियाज जनरेट करने के लिए। तो उस प्रोसेस में क्या होगा, वो देखेगा कि मुझे कौन से प्रोड्यूसर्स के साथ लिंकअप करना है, कौन से टेलीविजन चैनल्स हैं जो बहुत पॉपुलर है उनके साथ लिंकअप करना है, ताकि उसकी जो मूवी है ऐसे जगह पे रिलीज हो, ऐसे टाइम पे रिलीज हो कि वो उसको बेनिफिट्स लेके आए। तो ये जो काम है वो कोई गेस वर्क नहीं हो सकता, इट इन्वॉल्व्स मेंटल एक्सरसाइज, यू हैव टू यूज योर ब्रेन, आपको अपनी इमेजिनेशन यूज करनी है, इट शुड बी बेस्ड ऑन लॉजिकल थिंकिंग। एक सिस्टमेटिक वर्क चलेगा तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है। सो प्लानिंग इज मेंटल थिंकिंग। प्लानिंग हमेशा एक इंटेलिजेंट पर्सन ही कर सकता है, गेस वर्क पे ये नहीं चलेगा, तभी आप कह सकते हो कि आप सक्सेसफुल हो। So 7 features are there. First is planning focuses on achieving objectives. It is primary function. ये बेस है, बाकी फंक्शंस की कंपैरेटिवली परवेसिव है, हर लेवल पे है, कंटिन्यूस है, इट नेवर एंड्स, इट कंटिन्यूसली गोज ऑन। फ्यूचरिस्टिक है, ये फ्यूचर से रिलेटेड है एंड अकॉर्डिंगली आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो। इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, आपने प्रोसेस में देखा है कि डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं, हर चीज़ को अकाउंट में लेके वी हैव टू टेक डिसीजंस। एंड लास्ट इज मेंटल थिंकिंग कि ये गेस वर्क पे नहीं चलेगा, यू हैव टू यूज योर ब्रेन, लॉजिक्स पे चलेगा, गेस वर्क पे नहीं चलेगा, आपकी विजुअल थिंकिंग इस पे काम नहीं करेगी। सो वी हैव डन फॉर टुडे, I will meet you for the next lecture. If you have any problem then please ask me personally, okay? Thank you.